Students, we will continue our journey of science of the chapter life processes, and now today we are starting with the life process of plants. Once again, we'll do it in a different order as not given in the textbook. We'll start the processes of plants from the last, from the end. So, the last part of the chapter is excretion in plants, and this is the topic where we are going to start with today. Once again, you guys are supposed to make complete and thorough notes of all of these things. Okay, not everything is given in the textbook. Lot of things which are not there in the textbook are also asked, so keep making notes. Okay, excretion in plants. Excretion means what? To give out all the waste products. Yes, removal of waste. Excretion is nothing but removal of waste. The first type of waste that are removed from plants are gaseous waste. Gaseous waste products. What are the gaseous waste that are removed? See, plant use different strategies. Oxygen can be removed as a waste product during photosynthesis. यार प्लांट को तो रिक्वायर्ड नहीं है ना. सी इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आई टोल्ड स्वेट इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, carbon dioxide is an excretory product, yes or no? But in excretory system we study about the process of formation and removal of urine, but carbon dioxide is also an excretory product for us, yes or no? In plants similarly, oxygen is an excretory product which is released during photosynthesis. Yes, carbon dioxide is also an excretory product. कैसे? अरे at night time it takes in oxygen and gives out carbon dioxide, yes or no? So it gives out carbon dioxide also. These are the two gaseous waste products. Liquid waste products. What are the two liquid what are the all the liquid waste products? First, the liquid waste product is water, yes or no? See, they get rid of excess water by transpiration, and the next process that we are going to study is this transpiration, कि कैसे transpiration से वो water को excrete करता है. Yes, for other waste plants use the fats such as whatever. See, first is the waste product is water. First excretory waste product is water. The second waste product is resins and gums. These are also liquid waste products. Gum होता है ना, plants का gum and resin. These are the two liquid waste products which are stored in old xylem. I hope you know what xylem and phloem are. Yes, तो old xylem जो होता है, जो पुराना xylem होता है, dead xylem. Yes, उसमें these are the two other excretory liquid waste products which are stored. रेजिन एंड गम्स. ठीक है, सी यहाँ पर भी दिया रहेगा कहीं पर तो भी. अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड xylem. यस, बट दिस इज लिक्विड वेस्ट, और इसको थर्ड टाइप में डिवाइड करेंगे हम एज सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स. द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर गिवन आउट बाय प्लांट्स. तो द फर्स्ट सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट इज डेड सेल्स. Dead cells, all the cells which are dead are removed from the leaves, from the stem, yes, from the bark, etc. And second solid waste product is dead leaves. Leaves are also removed. जो leaves सूखे हुए पत्ते होते हैं, dead or dry leaves. Dry leaves are other waste products which are just given out by plants. They fall off, right? Once the leaves are dry, once they are dead, they fall off from the tree. See, ये भी दिया है. Many of the tissues consist of dead cells. They can even lose some parts such as leaves. Yes, and many waste products are stored in the cellular vacuoles. Correct? Cellular vacuoles मतलब cell के जो vacuoles है. What is the function of plant cell का vacuole? To store food, proteins, etc. Vacuole का function क्या है? To store food, protein, etc., etc.
वहां से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर देता है, वो भी लिखना पड़ेगा अंडर सॉलिड वेस्ट. यस, दिस इज द थर्ड पॉइंट अंडर सॉलिड वेस्ट. मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स. नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दो. यस, दैट विल बी द थर्ड पॉइंट. एंड द फोर्थ पॉइंट, plants excrete some waste substances into the soil around them. Yes, again this is a solid waste. Soil के अंदर roots के through कुछ waste products दे देता है, मतलब plants का potty होता है वो, ऐसा समझो. Yes, and these are the four type of waste products given out by plants. है इतना सा पैराग्राफ, लेकिन देखो gaseous waste, oxygen, carbon dioxide, liquid waste, water, resins, gums. Yes, solid waste, dead cells, yes, dead leaves, dry leaves, correct. They excrete some waste products into the soil around them, and there are certain products which are stored in the cellular vacuoles, और ये vacuole से products बाहर निकाल के देता है. Clear है? Now I am erasing this off. All these waste products of plants are useful for us. Yes. For example, the first waste product of plants are essential oils. Essential oils. ये जो gums and resins थे ना, वैसे oils भी are the excretory products of plants. Yes, तो essential oil, for example, sandalwood oil or olive oil. These are the waste products of plants and they are used in our homes. Yes or no? For example, gums. Gums are used by us as adhesives. अरे गम होता है ना चिपकाने का, जिससे चीजों को चिपकाते हैं, वो गम. Resins. What are resins? Resins are used to make varnish. पता है सबको? Varnish. So they are used for making varnishes. Now जिसको varnish पता नहीं होगा, it is used to polish or give a polished look. Yes, to polish wooden material. हमारा जो फर्नीचर होता है वुड, उसके ऊपर एक शाइनी लेयर लगाते हैं. यस, जिसने देखा होगा एक शाइनी लेयर लगाते हैं. पहले लाइट ब्राउन कलर का होता है, वुड इज जनरली लाइट ब्राउन कलर. Yes, उसको डार्क ब्राउन कलर दिया जाता है by putting a varnish on it. Yes, it gives a shiny look. एक पॉलिश, वुड को पॉलिश करने के लिए यूज होता है varnishes and they are made up of resins. So these are some of the uses of all the waste products of plants जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. So you will have to note them down. Clear है? Yes. So this is the excretion product of excretory process of plants or the excretory products of plants. करेक्ट. अब आफ्टर एक्सक्रीशन से, हमारा एक्सक्रीशन पढ़ने के लिए हमको एक सेशन पूरा लगा था. प्लांट्स क्या ज्यादा कुछ नहीं होता है उसमें. एंड द सेकेंड, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. यस, या रेस्पिरेशन से पहले देयर इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. वन इज द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. water and minerals लिख दो. water and minerals. and second, food and nutrients. एक ही बात है, food and nutrients एक ही है. या तो food या nutrients. ये दो चीजों का ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी है. yes, we know that 9th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है कि water is transported by xylem. Yes, there is a tissue called as xylem in the plants, जहाँ से water और minerals transport होते हैं. And there is something called as phloem. Yes, which is used to transport food and nutrients. Xylem is a one-way tube. Yes or no? Xylem is a tube present in the plants, which is one way. That means it can transport water from roots to all parts of plants.
to all parts of plants. Yes, and the second tube, which is food and nutrients, it is transported by phloem, which is a two-way tube. Two-way. Yes, bidirectional. This is unidirectional, one-way tube. ये bidirectional, two-way tube. It transports nutrients from, कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है न्यूट्रिएंट्स? लीव्स. फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. लीव से लेके सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को फ्लोएम. यस, so two things are there which are used for transportation in plants. One is xylem, which transports water and minerals from roots to all parts of the plants, and the other one is for phloem, which transports food or nutrients from leaves to all parts of the plants. Clear hai? Yes. Now let's study how water is transported. Okay, for this I'll have to switch the page. चलो ध्यान दो कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. सी वेरी सिंपल फिनोमिनन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. ठीक है, ये है हमारा प्लांट एंड दीज आर द रूट्स. यस, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? Diffusion is a process of transportation of materials, solids, liquids or gases from a point at higher concentration to a point at lower concentration. What is osmosis? The transportation of water from a point at higher concentration to a point at lower concentration. Yes, especially in and out of the cell. In and out of the cell is called as osmosis. Yes, diffusion and osmosis are pure physical processes. No chemicals involved, है ना? कोई भी इसमें केमिकल इन्वॉल्व नहीं होता है और कोई और एजेंट भी इन्वॉल्व नहीं होता है. दिस इज प्योर फिजिक्स. Yes. Now what happens is step 1. Let's say you water the roots. Roots में पानी डालते हैं हम लोग. Here there are lot of ions present. Soil है. This is soil. The soil has got lot of ions. Calcium, magnesium, minerals है यहाँ पे soil में बहुत सारे. Now through the process of diffusion, these minerals enter into the roots. देखो रूट्स में मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये मिनरल्स रूट में चले जाते हैं, विच increases the concentration of ions in the roots. Yes, वैसे ये स्टेप 2 होना चाहिए. यहाँ लिखता हूँ ions move from soil to roots. Yes, through diffusion. Yes. Now this creates a pressure difference. Yes or no? This creates high concentration of ions in roots. Yes, and a pressure difference. अब देखो रूट्स के अंदर यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक सेल है. आई एम ड्रॉइंग दिस वन सेल. यहाँ पे आयन ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया. कॉन्सेंट्रेशन. यस, देयरफॉर वाटर enters. This creates high concentration of ions in the roots, and water enters the roots to balance this pressure difference. Yes, अंदर हाई प्रेशर हो जाता है. बेसिकली बहुत सारा आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया. उस कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए वाटर रूट्स में एंटर करता है. आई विल ड्रॉ इट हियर. सी, ये यहाँ पे वाटर है सपोज,
ये वाटर भी सेल के अंदर रूट के सेल में विच इज इन कॉन्टेक्ट विद वाटर रूट के टिप्स में एंटर करता है. नाउ सी देयर आर लॉट ऑफ सेल्स, एक के बाजू में एक सेल है. दिस इज फर्स्ट सेल, this is the second cell, this is the third cell, this is the fourth cell. Now there is a lot of concentration of ions and water here. Yes, we know that यहाँ से इधर जाएगा. Yes, high concentration to low concentration. यहाँ से इधर जाएगा, high concentration to low concentration. This is your xylem tube और xylem tube के cells है. यहाँ से यहाँ जाएगा, high concentration to low concentration. ऐसे करते 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 the water rises up slowly. Yes, the water enters the roots to balance this pressure difference. Point number 5, the water and minerals ये जो ions है वो minerals के बाजू में ions लिख देता हूँ. all rise up through the xylem to all parts of plants. Yes, and this is a pure physical process. ठीक है, this is a pure physical process. इसमें और किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. ओके, नाउ यार प्रॉब्लम एक हो जाता है कि this physical process is not very strong. मतलब क्या, if the tree, देखो यार ये वाटर यहाँ से यहाँ तक बहुत आराम से राइज कर लेगा. ठीक है, चलो छोटा सा ट्री है यहाँ तक राइज कर लेगा. बट इफ द ट्री इज ह्यूज, एक बहुत बड़ा अगर ट्री है, राइट, सो इट इज डिफिकल्ट दैट द वाटर रीचेस टू द टॉप मोस्ट पॉइंट. देखो यार यहाँ तक जाना है वाटर को. यस, और सिर्फ इस प्रोसेस से वाटर यहाँ तक नहीं जा सकता. ऐसे एक दूसरे को पुश करके पुश करके पुश करके पुश करके, है ना. मंदिर की लाइन नहीं है वो कि हाँ यार यहाँ से चालू किया भगवान तक तो पहुंच ही जाएंगे थोड़ी देर में. करेक्ट, एक दूसरे को धक्का दे दे के चला बूढ़े करते करते, देखो ना वही कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग. एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, चला बूढ़े चला, ऐसे करते करते जा रहे हैं, है ना. लेकिन ये चीज ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती. यस, someone has to, देखो someone has to pull them also. For example, the process of transpiration pull comes into picture here. Transpiration pull. What is transpiration pull? देखो यार, ये water, there is water in glass. ग्लास में वाटर रखा हुआ है ना. तुम यहाँ पे बैठे हो और बोल रहे हो पानी को आजा मेरे पास, तो पानी आ नहीं सकता तुम्हारे पास, राइट. यू विल हैव टू पुट इन अ स्ट्रॉ. यस, आलसी हो, तुमको ग्लास उठाना नहीं है हाथ से, सो यू विल हैव टू पुट इन अ स्ट्रॉ एंड सक फ्रॉम हियर. यस और नो, यू विल हैव टू लिफ्ट अ स्ट्रॉ, पुट इन अ स्ट्रॉ एंड सक द वाटर फ्रॉम हियर. करेक्ट. और सेम प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन पुल में. अब ट्रांसपिरेशन पुल में होता क्या है, सी ये ऊपर वाला जो प्रोसेस है वो तो चालू ही है, नो डाउट अबाउट इट, वो प्रोसेस नहीं स्टॉप होने वाला है. बट देन देयर इज लीफ ट्रांसपिरेशन. आई होप ट्रांसपिरेशन क्या होता है पता है. ये लीफ है ना. लीफ के अंदर होता है स्टोमेटा. दिस इज अ लीफ. स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, क्या है, कैसे है, व्हाटएवर, वो हम देखेंगे. यार टीवी में रसना का ऐड देखा रहेगा सबने. क्या होता है, एक बच्चा खेलते रहता है. यस, यहाँ पे सन दिखाता है ना. वो सन इसके अंदर ऐसे स्ट्रॉ लगा के इसका पूरा एनर्जी खींच लेता है अपनी तरफ, है ना. तो दिस गाय गेट्स ड्रेन्ड ऑफ. तो वैसे कुछ होता है. दिस इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में अगर वाटर का क्वांटिटी थोड़ा कम हो गया और यहाँ पर वाटर का क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा हो गया, concentration of water is more here. Yes, तो atmosphere will pull off this water, it will suck this water outside. तो देखो ऊपर से atmosphere खींच रहा है पानी को और नीचे से भी कोई तो पुश कर रहा है, हाँ कि नहीं. मतलब देखो ये है हमारे मंदिर की लाइन,
है ना। यहाँ पर बैठे हमारे गणपति बापा, ठीक है, ये गणपति बापा बैठे यहाँ पे दर्शन के लिए, लोग आ रहे हैं 1 2 3 4 5 वाटर, ये इतने सारे लोग मस्त लाइन में खड़े हैं। दीज आर ऑल द वाटर ड्रॉपलेट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स है। सी ये वाला इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, सब ठीक है ना। ये था प्रोसेस नंबर 1। लेकिन यहाँ होते हैं हमारे पंडित जी, पेटू महाराज, हाँ कि नहीं, थोड़ा अच्छा बनाते पंडित जी को। सो इफ यू गाइज हैव बीन टू लाइक बिग टेम्पल्स, ये हमारे पंडित जी है, यस। या फिर यहाँ पे जैसे गणपति उत्सव चल रहा है तो यहाँ पे गार्ड्स खड़े रहते हैं, या तो पंडित जी रहते हैं तो गार्ड्स खड़े रहते हैं। वो क्या करते हैं, इसको खींचते हैं इधर, चल 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 दर्शन करो, चलो चल चल इधर चल जल्दी, दे आर पुलिंग हिम, इसको ढकेल रहा है आगे, खींच खींच के आगे फेंक रहा है, हाँ कि नहीं, यस। मतलब ये पीछे वाले भी ढकेल रहे हैं प्लस सामने से भी कोई तो खींच रहा है उसको, तो वो प्रोसेस हो रहा है यार यहाँ पे, है ना। इधर से एटमॉस्फेयर बाहर खींच रहा है, और जैसे ही एटमॉस्फेयर यहाँ से बाहर खींचेगा यहाँ पे एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, मतलब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, यस और नो। और पीछे से कोई ढकलेगा, अरे चल सामने जगह है खाली, चल आगे, यस और नो। इधर ए चला पुढे जागा है, चला पुढे चला, ए जागा है पुढे चला, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। तो आगे का पीछे से कोई ढकेल रहा है और आगे से भी कोई तो पुल कर रहा है, पुल, सी द पंडित इज पुलिंग यू एंड थ्रोइंग यू अवे, है ना, कि जल्दी से जा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल, यस। सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, इट हेल्प्स इन, चलो ट्रांसपिरेशन के कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग out water from leaves, excess water leaves से बाहर जाता है, that process is called as transpiration. It helps in absorption and upward movement, absorption and upward movement of water and minerals, yes, by creating a transpiration pool. ट्रांसपिरेशन पुल से क्या होता है, इट हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड ऑल द मिनरल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन मोर, जो कोई लिखता नहीं है, छोड़ देते हैं। इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, जो ट्रांसपिरेशन पुल है, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, यस। सी अगर बहुत ज्यादा अंदर टेम्परेचर हो जाता है तो इट विल गिव आउट वाटर, एंड अगर ठंडी है तो इट विल नॉट लेट वाटर गो, यस। ये यहाँ पे वाटर को पकड़ के रखेगा, जिससे टेम्परेचर मेंटेन होने में हेल्प होता है, यस। और क्या है इसका काम, एक्सेस वाटर गिव आउट, एक्सेस लिख दो यहाँ, एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स, यस। The process of giving out of excess water and minerals from the leaves is called as transpiration. क्या करता है, what is transpiration pull? Yeah, it helps in absorption and upward movement of water and minerals. Yes, the absorption and upward movement of water and minerals is transpiration pull. और कौन क्रिएट कर रहा है इसको, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है ना। तो एक है ढकलो प्रोसेस, एक है खींचो प्रोसेस, यस और नो। जो पहला प्रोसेस हमने देखा ट्रांसपिरेशन के लिए वो था धक्का मारना, यस, पुश प्रोसेस, पुश, है ना, दिस इज अ पुश प्रोसेस। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मतलब ये कोई नाम नहीं है उसका। तो एक है पुश, समवन इज पुशिंग फ्रॉम बिहाइंड, एंड अनदर इज पुल प्रोसेस। इसका तो नाम ही है ट्रांसपिरेशन पुल, दिस इज अ पुल प्रोसेस। आई बात समझ,
तो पुश और पुल ये दो प्रोसेसेस से वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इन प्लांट्स. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फर्स्ट प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. बट किसका ट्रांसपोर्टेशन? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन. आई होप तुम पॉइंट्स लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं समझना है. यस, तो वाटर तो ट्रांसपोर्ट हो गया, कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है. देन देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? द प्रोसेस ऑफ transport of food or nutrients from leaves to all parts of plants. लीव्स से बाकी सारे प्लांट्स में फूड लेके जाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. ओके, सो कौन करता है ये? पहला पॉइंट, who does this? It is done by phloem. ठीक है ना? PHLOEM. 2. क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? It transports substances like sugars, energy, amino acids, yes, to growing parts of plants. Growing parts or storage sections. जहां ये सारी चीजें स्टोर हो सकती है वहां पे ले जाके रखता है. टू ग्रोइंग पार्ट्स और स्टोरेज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, अब ये होता कैसे है? वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट, यहां पे देयर इज फिजिकल प्रोसेस तो है, बट यहां पे देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी. अब जो पॉइंट लिख रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ट्रांसलोकेशन in plants in phloem is achieved by utilizing energy. प्रोसेस समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो उसका. यस, एग्जाम्पल ATP. बेसिकली ATP यूटिलाइज करता है. यस, अब हो क्या रहा है? आई कंप्लीट दिस पॉइंट. ये पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान दो. ये है हमारा प्लांट, ये रूट्स, ये लीफ. वेयर इज द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड? इन द लीव्स. ये है हमारा न्यूट्रिएंट्स. यस, ये न्यूट्रिएंट्स है. दिस इज ट्रांसफर्ड from the point where it is produced to the point where it is needed. Yes, it can be from a point of low concentration to a point at high concentration. Yes, this is called as active transport. देखो यार, नेचर बोलता है जिस किसी के पास जो चीज ज्यादा है दूसरे के पास जानी चाहिए. एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन और हाई प्रेशर टू लो कॉन्सेंट्रेशन और लो प्रेशर. यस, हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई प्रेशर से लो कॉन्सेंट्रेशन या लो प्रेशर पे कोई भी चीज फ्लो होती है. एंड दिस इज द रूल ऑफ नेचर. यस, जैसे विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, टेम्परेचर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सब कुछ हाई से लो जाता है. लेकिन ये तो नेचर है. बाय नेचर अपना एनर्जी यूज करता है और ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता है. लेकिन अगर तुमको कोई चीज लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन लेके जाना होगा, दैट इज ऑपोजिट टू नेचर, तो तुमको एनर्जी डालनी पड़ती है. यू हैव टू सप्लाई सम एक्सटर्नल एनर्जी टू गो अगेंस्ट द नेचर. यस, अब ये एनर्जी आएगी कहां से?
See, translocation in phloem is achieved by utilizing ATP, utilizing energy from the companion cells. कंपेनियन सेल्स, यार देखो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था फ्लोएम के क्या क्या पार्ट्स है. यस, फ्लोएम ट्यूब होता है, सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल्स होता है ना. सो ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड, यस, और ऐसे लिखो, ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स में होता है and is achieved by utilizing the energy from the companion cells. Yes, and this happens in both upward and downward direction. Downward direction. और इसके लिए you have to use the energy from the companion cells. मतलब फ्लोएम है, हमको याद क्या रखना है वही चीजें बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है. देयर इज फ्लोएम, फ्लोएम में यहाँ पे होते हैं कंपेनियन सेल्स, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा है सीव ट्यूब. दिस इज योर सीव ट्यूब. ये पूरा फ्लोएम है, फ्लोएम में है कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स में ये न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. यस, कहीं पे भी हो सकता है, इधर इधर, नीचे ऊपर, करेक्ट. बट ये मूवमेंट करने के लिए ये जो कंपेनियन सेल्स है इसके अंदर होता है एटीपी एनर्जी. They utilize this ATP energy, yes, to flow even from a point at low concentration to a point at high concentration. जिसको जरूरत है उसके पास एनर्जी फ्लो होता है. Yes, according to plants needs. Yes, produced to the point where it is needed. मतलब क्या? According to plants need. And the need can be anywhere बच्चों. It can be from high concentration to low, low concentration to high, and this is called as active transport. Yes, the flow of energy from low concentration region to high concentration, flow of nutrients is called as active transport. कौन करता है? फ्लोएम करता है. फ्लोएम में किसके अंदर होता है? सीव ट्यूब्स में होता है. किसकी हेल्प से होता है? बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फ्रॉम द कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल से एनर्जी लेता है और सारे डायरेक्शन में इसको मूव करता है. इसका बहुत डिटेल स्टडी रहेगा नेक्स्ट ईयर जो लोग बायो लेंगे. फाइन. एंड दिस इज हाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एज वेल. यस, देखो, बाय यूजिंग दिस एनर्जी, यहाँ एक और पॉइंट लिख देना. The food or nutrients can flow, it will always flow from high pressure to low pressure only. ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एनर्जी फ्लो होती है, लेकिन यस, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन. प्रेशर कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है हमको नहीं पता. क्लियर है? सो दिस इज हाउ ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस. That is transportation of nutrients in the plant body. हमारे बॉडी में कैसे न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं? थ्रू ब्लड. जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें से जाता है, जो सेल को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो उठा के लेता है बाय डिफ्यूजन. सो जैसा हमारा प्रोसेस है वैसा प्लांट का प्रोसेस है, बट थोड़ा सा अलग. एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स. अब यहाँ आ जाओ जरा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देख लो क्या क्या पॉइंट्स है. So all of these we studied. See, transportation of water. Transportation of water, सबसे पहले नॉर्मल रूट प्रेशर दिया है. रूट प्रेशर, ओके, 1 सेकेंड, मैं नाम लिखना भूल गया यहाँ. ये जो सी द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, दिस पुल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल. और ये जो प्रोसेस है पुश, it is called as root pressure. root pressure है ना, जैसे पीछे से प्रेशर दे रहा है कोई, तो रूट का प्रेशर, यस, पुश कर रहा है, पुश. द पुश प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर. यहां से देखो, ये रूट प्रेशर लगा रहा है इस पे आगे कि चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो. दैट इज रूट प्रेशर. यस, तो रूट प्रेशर पे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज रूट प्रेशर वगैरह, तो ये इतने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे.
और अगर ट्रांसपीरेशन पुल पे आता है तो ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ट्रांसलोकेशन पे आता है तो ये सारे पॉइंट्स लिख देना। यस, डिफरेंशिएट बिटवीन आया ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन। यस, पॉइंट नंबर 1 जाइलम में होता है, पॉइंट नंबर 1 फ्लोएम में होता है। पॉइंट नंबर 2, इट इज अ प्योर फिजिकल प्रोसेस। यस, it involves, or it is a chemical process also, involves use of energy, use of energy from companion cells, from companion cells। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यूज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे देर इज नो यूज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। यहाँ लिख देना, it is a physical process which requires no external energy, no external energy। और यहाँ पे there is external energy is required, है ना। This is unidirectional from roots to all parts। Yes, this is from leaves to all parts। यस, ट्रांसपीरेशन से क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर एंड मिनरल्स। यस, ट्रांसलोकेशन से क्या ट्रांसपोर्ट होता है? फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। दीज आर द 4 पॉइंट्स दैट यू विल हैव टू राइट डाउन इन दिस पर्टिकुलर केस। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में मैंने सिखाया है उसको। पॉज करो, नोट डाउन करो सारे पॉइंट्स। फाइन, चलो तो ये हो गया। सी यहाँ पे टेक्स्ट बुक पढ़ना है आप तुम लोगों को, ठीक है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा है, दिस फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज ऑन रूट प्रेशर, ये वाला और ये वाला। यस, from root, from the soil to eliminate this difference, this means that there is a steady movement of water from root xylem creating a column of water that is steadily pushed upwards। ठीक है ना, और ये जाइलम के थ्रू होता है एंड गोज थ्रू अपमोस्ट पॉइंट्स ऑफ द प्लांट। फिर उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन पुल। तो ये है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन पुल। प्लीज देख लेना, ढंग से सब कुछ लिखो। यस, और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन दीज टू। देखो यहाँ पे, इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ये तो मैंने लिख के दिया। The effect of root pressure in transport of water is more important at night। During the day, when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem। Very 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 important point। देखो, पानी ऊपर पहुंचाने के 2 रास्ते हैं, एक है रूट प्रेशर, एक है ट्रांसपीरेशन पुल। देखो, रूट प्रेशर यहां से ढकेलेगा, इट विल पुश, and transpiration pull will pull from here। लेकिन during the night यहाँ पे there is no sun। yes, sun नहीं है तो transpiration pull इतना होगा नहीं। अरे हीट की वजह से ही तो यहाँ पे पानी बाहर आएगा, हाँ कि नहीं। हीट की वजह से जब तुम्हारा हीट बहुत हो जाता है तो हमको बहुत प्यास लगती है। व्हाई? बिकॉज आवर बॉडी गिव्स आउट वाटर। तो ड्यूरिंग द डे टाइम ट्रांसपीरेशन पुल इज वेरी लेस। यस, and during the night time during the day time transpiration pull is very high। transpiration pull ज्यादा होता है डे टाइम में। yes, यहाँ थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, pull is more during the day time। अब इसका मतलब ये है कि रूट प्रेशर नहीं है, लेकिन दिस इज मोर बेनिफिशियल, ये ज्यादा काम करता है। एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम रूट प्रेशर ज्यादा काम करता है। रूट प्रेशर yes works more during the night time। क्लियर है? एक बार फिर से देखो, the effect of root pressure in transport of water is more important at night and during the day when the stomata are open the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water।
जो मैंने नोट्स में नहीं लिखा ये पॉइंट नोट्स में ऐड करो लास्ट में, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन पुल। तो रूट प्रेशर में लिख देना दिस इफेक्ट इज मोर बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट एट नाइट, और ट्रांसपीरेशन पुल में लिखना ड्यूरिंग द डे टाइम when the stomata are open the transpiration pull becomes a major driving force। clear है? और उसके बाद में you have transportation of food and other substances। the paragraph is very important, that's why मैं मार्क करके दे रहा हूँ। See, let us consider how products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved in the plant. This transportation of soluble products of photosynthesis is called as translocation। Definition: it occurs in the part of vascular tissue known as phloem। Second point लिखवाया था। Besides, the products of photosynthesis also transfer amino acids and other substances। ये भी लिख के दिया नोट्स में। These substances are specially delivered to the storage organs of roots, fruits, seeds and other growing organs। हाँ कि नहीं? देखो कहाँ जाके होता है, मैंने बोला था they are transported from leaf to all other parts and storage parts, है ना? तो storage parts like मैंने वो नहीं लिखा, storage organs which are roots, fruits, seeds and other growing organs। The translocation of food and other substances takes place in sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction। Yes, sieve tubes में होता है with the help of, कैसे हेल्प लेता है? एडजेसेंट कंपेनियन सेल से वो एनर्जी लेता है। देखो आगे लिखा रहेगा, अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेस। देखो ट्रांसपोर्ट इन जाइलम मतलब ट्रांसपीरेशन इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस, whereas translocation in phloem is achieved by utilizing energy। Materials like sucrose is transferred into the phloem using energy from ATP। This increases the osmotic pressure of the tissue causing water to move into it। प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वाटर अंदर मूव होगा। This pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure। Yes or no? देखो ना यार, ये लिखा है ना मैंने, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इधर ब्रैकेट में, इधर गया। सी, ट्रांसलोकेशन फ्लोएम अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इन एटीपी फ्रॉम कंपेनियन सेल्स व्हिच पुशेस वाटर, यस, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया एज वेल। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिखना है, थोड़ा क्लियरली लिख दो उसको, ये वाला पॉइंट। To increase the osmotic pressure, the tissue causes water to move into it। This pressure moves the materials in the phloem of the tissue which have less pressure। This allows phloem to move material according to the plant's needs। जहाँ चाहिए वहाँ। For example, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the buds which need to grow or which need energy to grow। रूट के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है और यहाँ एक फ्लावर आने वाला है, बर्ड, यस, एक मस्त सा फ्लावर आ रहा है यहाँ पे, उसको एनर्जी चाहिए तो यहाँ से उसके पास जाएगी। सो एज पर द नीड, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है, एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। और इसके बाद आएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो एवरी पार्ट आई एम कवरिंग टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, एंड आई होप कि तुम लोग नोट्स ले रहे हो। दैट्स इट फॉर टुडे। मे बी इन 1 or 2 more sessions the entire chapter will get over, right? Keep preparing the notes, keep studying, read the textbook। टेक्स्ट के ऊपर कुछ नहीं, मेरे नोट्स भी नहीं। यस, टेक्स्ट बुक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर नोट्स। एक बार पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ो, बाई चांस कोई पॉइंट छूटा है तो उसको भी नोट्स में लिख लो, एंड देन कंसिडर इट फिनिश्ड। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन, चलो गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय।